नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने अज साबका मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी नूं लैके एक वड्डा खुलासा किया। चरणजीत चन्नी नूं दिते अल्टीमेटम का समा खत्म होने तो बाद पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने क्रिकेटर जसइंदर सिंह का नाम मीडिया सामने जनतक कर दिता। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे अपने नाल बैठे खिडारी बारे पूरी जानकारी दी। मुख्य मंत्री मान ने कहा कि बीते दिन ही वो धर्मशाला में IPL का मैच देखण गए सी। इस दौरान जसइंदर सिंह ने उन्होंने पूरा मामला दस्सिया सी। जसइंदर ने मुख्यमंत्री मान नूं दस्सिया कि साबका मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने भांजे जरिए उन्हां कोलों नौकरी देने के बदले पैसे की मंग की सी। साबका मुख्यमंत्री चन्नी ने क्रिकेटर जसइंदर तो नौकरी बदले 2 करोड़ रुपए की मंग की सी। जसइंदर IPL पंजाब की टीम च खिडारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हुण उन्हां दी जसइंदर नूं बनदी नौकरी दी जाएगी। चन्नी साहब बन गए CM, होर भी ज़्यादा चाह चढ़ गया। हल्का उन्होंने पैंदा है, हल्का पैंदा उन्होंने उन्होंने कोले गए चन्नी साहब कोले उत्थे ऐसे जगह से आ जड़ा कमरा ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ हाँ जी इत्थे मिले तो इत्थे केस पढ़ के सुनाया हुसन लाल ने। ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ हुसन लाल ने पढ़ के सुनाया जी पेपर। हाँ भी आ केस है जी। तो चन्नी साहब कहते भी काम तो बन सकता है थोड़ा, कहते भी फिर करो जी सर। कहते भी नौकरी तो बनती है तो अगली कैबिनेट च असीं लै आवांगे। इत्थों मोड़ आउंदा एक वड्डा। फिर उन्होंने की किया जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ दसो जसिंदर आराम नाल बोलदे आराम नाल। वो कहंदे भी एलिजिबल है ते किनू मिले इधर आराम नाल बोल। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ। पहले तो बुलाया गया जी, एक मिनट आएगा साहब प्लीज सुन, सारा जी आंदा ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੱਸਣਗੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। हाँ जी सर, वो गड्डी जो नहीं कहते मेरे भतीजे ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ, ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਕੌਣ ਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸ਼ਨ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਐਡੀ ਕਿ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਓਲੰਪਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇੱਕੋਦਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਿਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। पंजाब की भगवंत मान सरकार वालों अपनी कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिस तो बाद मंत्रियों के महकमे च वड्डा फेरबदल होया है।
ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NRI ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕੀ ਟੀਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੱਠੀ ਦੱਸ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 'ਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਢੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਬਣ ਸਕੋ। ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ PSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ परफेक्ट तो एक फोकस्ड स्टूडेंट होवो अपनी मंजिल प्रति। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को सेना ने जवानों ने 10 किलो IED और एक AK-56 जैसे घातक हथियारों के साथ 3 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। तीनों आतंकी अरोसी पर करमाड़ा सेक्टर में भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना की कार्रवाई में तीनों आतंकी घायल हुए हैं और सेना ने इनके कब्जे से हेरोइन जैसा संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद किया। सेना के जवानों को जैसे ही बॉर्डर पर संदिग्ध मूवमेंट की भनक लगी, जवाबी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। गोलीबारी की घटना में 3 आतंकी घायल हो गए। सेना की ओर से पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना का आशंका है कि कुछ और आतंकी बॉर्डर पार कर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुदरती आपदा का कहर दिखा है। यहां पर भूस्खलन की वजह से मुगल रोड बंद हो गई है। वहीं इस भूस्खलन की वजह से फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बता दें कि इससे पहले अप्रैल के महीने में रेजिन और गांदरबल के पास एक भूस्खलन हुआ था जिससे श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग अवरुद्ध हो गया था।
जम्मू कश्मीर में लगातार गैर मुस्लिमों की हत्या के बाद आज सड़कों पर पीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पीडीपी कार्यकर्ताओं ने लगातार मोदी सरकार और एलजी प्रशासन पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि बीते दिनों आतंकियों ने उधमपुर में रहने वाले दीपू को गोली मार दी। वो अनंतनाग में जंगलात मंडी के पास एक मनोरंजन पार्क में निजी सर्कस मेले में काम कर रहे थे। सरकार एक तरफ से ये बात कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, तो दूसरी तरफ से ये टारगेट किलिंग हो रही है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस टारगेट किलिंग का जिम्मेवार कौन है? इस टारगेट किलिंग का जिम्मेवार कौन है? ये टारगेट किलिंग कब बंद होगी? तो आज हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जम्मू के नौजवान की कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी आज कहाँ है? वो क्यों नहीं सड़कों पर ये प्रोटेस्ट करती? जहाँ सरकार से पूछती है, जो सरकार से पूछती है, तो एक गरीब का खून है सड़कों पर, तो यही इसी वजह से आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर हैं। एनसीईआरटी की किताबों से खालिस्तान के जिक्र को हटाने का फैसला किया गया है। दरअसल पिछले महीने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को चिट्ठी लिखी थी। इसमें मांग की गई थी कि 12वीं क्लास की किताब से खालिस्तान के जिक्र को हटाया जाए। साथ ही एनसीईआरटी की किताबों से उस बात का जिक्र हटाया जाए जिसमें सिखों को अलगाववादियों के तौर पर दिखाया गया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की किताब में खालिस्तान का जिक्र किया गया था। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की स्वतंत्र भारत में राजनीति किताब पर 7वें चैप्टर में खालिस्तान को लेकर बात कही गई थी। इसमें सिख राष्ट्र को मजबूत करने की दलील बताई गई थी, जिसे अब हटाने का फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि इससे सिखों की छवि धूमिल हो रही थी। जो पाठ्य अपनी किताब में लाती है वो एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, कमेटी है, उसकी देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं। और क्या इस वक्त के संदर्भ में कौन से पाठ्य को, कौन से जो एक टॉपिक है उसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये एनसीईआरटी का पूरा अपना मामला है। वो अपने अकॉर्डिंग फैसले लेती है और एनसीईआरटी डिसाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें, अब इस पे भी अगर कोई राजनीति देख रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा पर है। यहां उन्होंने पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए निशाना साधा, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं हमेशा भारत का अपमान करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज एक बार फिर से आंदोलन कर रहे पहलवानों पर निशाना साधा और कहा कि अगर एक भी आरोप मेरे खिलाफ साबित हो जाता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास
अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।